Okay, so once you have designed your website, it's important to add products, and obviously adding products is really a वो तो चलता रहेगा आपका, जब तक वेबसाइट लाइव है तब तक आप नए प्रोडक्ट्स डालते रहेंगे. Broadly, I'm talking about only 3 types of products. There are other types of products. For example, I have auctions, so I have an auction type of product. But the main 3 types of products are simple product, variable product, and downloadable product. And simple products are straightforward. It's a simple, I go to the website and I click on, all these are simple products. This is basically a simple product where I'm not making any choice. I'm just selecting number of items to buy, quantity, and then clicking on adding to cart. Variable products are typically where the user is selecting something. यहाँ पे अगर मैं size select कर रहा होता या color select कर रहा होता तो उसके वो variations माने जाते हैं, उनको variable products कहा जाता है. Those are called variable products where you are selecting the size or color or any other parameter of that product. Those are variable products that you create. And obviously you may even have downloadable products where based on, if it may be a free product, or if they can buy a downloadable product, then once they complete the sale, then that product is available for them to download, the users for them to download. So these are the typically 3 types of products. Again, it will depend on कि आप क्या बेच रहे हैं, किस तरह का वेबसाइट है, किस तरह का ई-कॉमर्स प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, वो उन पे बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है. जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो तब कुछ चीजें you need to keep in mind. So if I go back to the WordPress, this thing. So this is where I'm clicking on products, and I click on all products. These are my products, and I'm adding a new product. So this is where you will get the name, description, and various parameters that you will add to it. So typically keep the product name short. बहुत लंबा मत रखिएगा. ये I have also learned it the hard way. क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मैंने लंबे लंबे नाम रखे, मेरे सेलर्स ने लंबे लंबे नाम रखे, क्योंकि जैसे Amazon, Flipkart है, उसमें बहुत लंबे लंबे होते हैं. लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो एक्चुअली में जो हमें दिखते हैं वो छोटे नाम दिखते हैं. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप द नेम कैची, क्योंकि जब आपका वेबसाइट लाइव होगा एंड यू स्टार्ट डूइंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, देन product name needs to be short, 60 characters, of the order of. Product description में आप you have the main description and you have the short description. ये short description में आया है जो product के साथ आता है, और ये नीचे main description है, long description. So again, use these to describe your product well. Bullet points use करिएगा. प्रोडक्ट प्राइसिंग आप कैसे कर रहे हैं वो बहुत क्रिटिकल है. ये प्राइसिंग है कि भाई मेरा रेगुलर प्राइस 200 है लेकिन मैं इसको 150 में दे रहा हूं, जैसे मेरा ये सेल प्राइस है, तो ये मेरा रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस है. मैं शेड्यूल कर सकता हूं कि ये सेल प्राइस कस्टमर को सिर्फ आज और अगले हफ्ते तक दिखना चाहिए, उसके बाद फिर वो वापस 200 रुपीज चला जाएगा. तो आई कैन डू मेनी ऑफ दीज थिंग्स. इन्वेंट्री, SKU is stock keeping unit. तो जब अगर आप अपना वेबसाइट सोच रहे हैं या किसी और के लिए भी सोच रहे हैं, तो हर प्रोडक्ट का एक स्टॉक कीपिंग यूनिट आप मेंटेन करें अपने लिए, ताकि अगर आपके पास 200 प्रोडक्ट हैं तो आपको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट का नंबर क्या है, तो आप जल्दी से ढूंढ सकें. और यहाँ पे जब आप डालेंगे कि हाँ इस स्टॉक का मैं मेंटेन करना चाहता हूँ और ये इस वक्त मेरे पास 5 हैं सेल के लिए, तो जैसे सेल होती जाएगी आपकी वेबसाइट से, तो ये अपने आप कम होता जाएगा. अगर आपने 5 रखे हैं और 1 सेल हो गया तो ये 4 बन जाएगा अपने आप. तो ये वर्डप्रेस में अपने आप हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें. और इसके नीचे ये टैक्स स्टेटस है. इन इंडिया जो भी आप ई-कॉमर्स में कर रहे हैं सारा GST
होना मतलब जरूरी है टेक्निकली। लीगली आपको जीएसटी लेना चाहिए और उसके बिना आप ई कॉमर्स नहीं कर सकते। बिजनेस वाइज वैसे अगर आपका 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी नहीं चाहिए, लेकिन ई कॉमर्स में जीरो मतलब कुछ भी है आपको जीएसटी चाहिए। तो ई कॉमर्स में जीएसटी बहुत जरूरी है। तो उस तरह से आप ये डिफाइन करेंगे टैक्स और अलग अलग टैक्स क्लासेस आप डिफाइन करेंगे, तो ये जरूरी है चीजें। इसके अलावा ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज, टैग्स और एट्रीब्यूट्स। तो ये जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं ये डिफाइन करते हैं कि आपके पास है, आप बेच क्या रहे हैं। तो जैसे क्या मैं यहाँ पे शूज बेच रहा हूं या मैं क्लोथ्स बेच रहा हूं, सॉरी, तो मैं बेच क्या रहा हूं, हैंड बैग्स एंड सो ऑन। और इसके नीचे भी मैं बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि जैसे शूज के नीचे मैं आई कैन क्रिएट अनदर स्पोर्ट्स, ये शूज के नीचे आ गया, तो ये मेरी कैटेगरीज बनेंगी। ये आपको थोड़ा सा जब आप शुरू करेंगे, शुरू करने से पहले यू शुड डिफाइन व्हाट योर कैटेगरीज विल बी, you should have in mind what it is, and you can set up your categories by clicking on these categories here and so on, and you will have okay, somebody's raised hand. Okay, not sure why these windows are beeping. Okay, so the attributes are also critical. I'm sorry, here it is. And this is where you can define global attributes, attributes like so sports shoes ke mein sizes, shoe size could be an attribute. So I can either define it, I can add a new attribute. And it will be visible, and I can say if it's a men's shoes, then I can say 8, 9, 10, 11, 12. Let's assume that I'm going to save this attribute. और अगर मैं इसको वेरिएबल प्रोडक्ट बनाता हूं, ठीक है, फॉर अ मिनट, अगर मैं इसको वेरिएबल प्रोडक्ट बनाता हूं तो मैं इसको एट्रीब्यूट को बोल दूंगा ये यूज्ड फॉर वेरिएशंस। तो जब मैंने इसको वेरिएशंस के बाद, तो यहां मेरा वेरिएशंस आ जाएंगे बड़े सारे। तो क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम द एट्रीब्यूट्स। So size being one of the variations that people can choose from, and then I can select many of those things. So shoe size में क्या है उसका अलग अलग से वो कर सकते हैं। तो ये आप you will need to define these things. Product tags are very useful for searchability. जब आप सर्च करते हैं तो tags are used. जैसे आप सोशल मीडिया पे हैशटैग यूज करते हैं ना, वही टैग्स हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट दैट दे आर नॉट हैश। इसमें इसके आगे हैशटैग नहीं लगता, हैश नहीं लगता, हैश साइन नहीं लगता, और इसमें टैग में स्पेस भी आप कर सकते हैं। तो यू कैन हैव 2 वर्ड्स एज अ हैश एज अ प्रोडक्ट टैग। So you can obviously add products one by one, or you can import products. इंपोर्ट करने में आपको पूरा यू कैन डाउनलोड CSV फाइल, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल बोलते हैं उसको। आप उसको एक्सेल में बना के सेव एज CSV करके और फिर उसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ट्रिकी होता है, बट वंस यू लर्न इट देन इट इज इजी फॉर यू टू काइंड ऑफ डू इट। And exporting is useful. Supposing you added many products, you export them, you make modifications to them, and then import them again, and it will sort of update all your products together. So that is how you would typically create and add products. So any questions for this section?